Hi guys. Hello. So welcome to the session, the Lakshya Batch 2.0. Right? Hi everyone. So let's continue learning. Right, let's continue practicing. So as you know that as part of this, we are going to discuss only PYQs, that is previous year questions. And this is like I've started from basics. So I have intentionally picked certain easy to moderate PYQs for this session and gradually will go to advanced level. So once again, if you have just started your preparation, this is the series that you should not miss. Shantanu is saying attending live after long. So Shantanu, what was stopping you from attending live? Is it the college or something else? हमेशा लाइव अटेंड करो यार, फायदा होगा. Oh, thanks for your kind words. Hello. Great. Chalo. So students are still joining. So let me share the PPT first. Hi Mihir. This is Lakshya 2.2. Yes, so this is our session number 2. अगर आपने कल का सेशन मिस किया था तो प्लीज एक बार देख लेना, so that you do not miss anything. Yes, Karthik, मतलब it will cover all the topics from CAT, ZAT, IFT and CMAT perspective. मतलब हम लोग कर ही रहे हैं उसके PYQs. लेकिन PYQs आप अगर रेंडमली प्रैक्टिस करोगे आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप जब ये सेशन में करोगे, बिकॉज आई हैव क्लासिफाइड देम, आई हैव कैटेगराइज्ड देम, ओके, इन टर्म्स ऑफ द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, सो आई नो व्हेन टू गिव यू विच लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन. ठीक है, सो हम उस तरीके से करेंगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट? So, okay, so guys, in case if you're new to my session, this is a bit about myself. This is my Telegram group. Make sure all of you have joined this. And if you want to join the Plus batch, अगर आपने कहीं पे भी enroll नहीं किया है, आप Plus batch join कर सकते हो. And talk to me over here for Plus subscription and all. And yes, so talking about the schedule. So this is going to be the schedule. You know, ये आज का क्वांट का सेशन आज नहीं रहेगा, because I'm keeping a special session, a separate session for the undergrad exams. So आज का लक्ष्य बैच नहीं रहेगा, but उसकी जगह पे आज 7:15 को एक guest session है guys. There is a guest session which you should not miss. तो ये guest session किस पे है? It is on MBA specializations. MBA specializations पे है. तो यू नो एक एमिनेंट फैकल्टी आने वाले हैं, वो आपको मार्केटिंग, फिनांस एंड एचआर के बारे में मेनली बताएंगे, क्योंकि ये 3 को मेन स्पेशलाइजेशन है. फिर उसके अलावा हम लोग काफी सारे और नीश स्पेशलाइजेशन लेने वाले, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, या फिर ई बिजनेस डिजाइन हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया. सो वी आर गोइंग टू हैव मोर सच सेशंस एवरी फ्राइडे. तो आज सेशन होगा, फिर फ्राइडे को होगा, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को होगा. इस तरीके से we have kept some 6 to 7 sessions. We expect all of you to come, turn up in numbers and attend the session so that we can continue with that. Chalo, so here is the first question guys on your screen. Go through the data. YouTube पे है, yes, 7:15 को YouTube पे है. मैंने ग्रुप पे लिंक डाला भी है, तो गाइज इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज क्विकली जॉइन इट.
दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ 10. ठीक है, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स हाइपोथेटिकली क्रिएटेड. हेलो everyone, go through the data. मेरे हिसाब से this is an easy question, just a different situation, so make yourself comfortable with this kind of varieties. So I've created the poll, guys. Now I think you can read the complete question in about 30-40 seconds. Yes. So guys, he's going to stay over there for 10 days, right? And he can stay for maximum 10 days. Each of the task has a priority and takes certain number of days to complete. Arun cannot work on more than one task at a time, right? And the following table gives the details of the priority and the number of days required for each of the tasks. So definitely guys, even if you see now, it's clearly mentioned Arun's first priority is to complete as many tasks as possible. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो यही टास्क ले, वो ऐसे टास्क लेगा, वो ऐसे नहीं करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर में कंप्लीट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि मैं मैक्सिमम टास्क कितने कंप्लीट कर सकता हूं. तो गाइस कहना इसे यहां पे हमें डेज को देखना पड़ेगा. तो यहां पे डेफिनेटली ये जो टास्क है उसको मिनिमम डेज लग रहा है, तो वो इसको करेगा फिर 3 डेज वाला, फिर एक और 3 डेज वाला, तो 2 + 3 + 3 कितना हो गया 8. अब बाकी के कोई भी टास्क वो लेता है वो 10 दिन के अंदर कर नहीं सकता, सो ही कैन मैक्सिमम कंप्लीट 3 टास्क. इजंट दिस सिंपल एवरीवन? आसान था कि नहीं? यस, ओके, चलो फाइन. सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन देन. राइट, अगेन आई फील दिस शुड बी सिंपल, तो मैं इसके लिए थोड़ा कम ही समय देता हूं. या बट यस, कृष्ले थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. Z के अंदर सिर्फ ये डेटा पे एक ही क्वेश्चन था, देयर वाज जस्ट वन क्वेश्चन. ठीक है, अब चेक करो Z 2011 का पेपर, तो इसमें 3 क्वेश्चन नहीं है. पर अगर मैं वो क्वेश्चन सीधा आपको दे देता ना तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो अभी हमने देखा गाइस कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करने, विल हैव टू टेक टास्क 5. Isn't that simple? So definitely हमें टास्क 5 लेना ही चाहिए. Which of the following tasks will always be completed if Arun tries to complete maximum number of tasks? Of course, it has to be task 5. हाँ नहीं अमृत, हाँ सुनो, yes, T1 is also coming in every group. Okay, yeah, I think he has a point, guys. तो यहाँ पे correct.
हमें सिर्फ ये लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि T1 भी तो आएगा ना। क्योंकि उसके C2 तो आप लोगे ही लोगे। हाँ, सो यहां पे हमें एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा, T1 एंड T5। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, T3 आना जरूरी नहीं है ना। पवन सुनो, T3 क्यों नहीं आएगा? T3 आना जरूरी नहीं है गाइज। यहां पे हम ये ऑप्शन कर देते, दैट्स मोर लॉजिकल। प्रायोरिटी की वजह से नहीं आएगा, एग्जैक्टली राइट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो प्रायोरिटी की वजह से नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, सो जस्ट अ सेकेंड। नहीं नहीं, हाँ सुनो, द पॉइंट इज के अल्टीमेटली वो क्या करेगा, मैक्सिमम टास्क कंप्लीट करेगा। नाउ अरुण नोज दैट मैक्सिमम ही कैन कंप्लीट 3 टास्क, सो ही विल आल्सो लुक एट द प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटी वाइज उसके लिए एक्चुअली वो क्या करेगा, सो वो ये वाला टास्क डेज की वजह से ले रहा है, ये ले रहा है, और फिर ये वाला लेगा ना। आर गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, तो सुनो एक सेकेंड, आप कोई से भी टास्क ले लो, अल्टीमेटली वॉट एवर टास्क यू टेक, T1 एंड T2 तो आएगा ही, ठीक है। अब वो T5 भी ले सकता है, राइट। अब वो T5 भी ले सकता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क, वो तो यहाँ पे दिया ही है। अरुण फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट एज मेनी टास्क एज पॉसिबल एंड देन ट्राई टू कंप्लीट दी हायर प्रायोरिटी टास्क। मतलब ये कंडीशन मैंने कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है कि नो अदर कंडीशंस अप्लाइड। So of course you will try to complete as many tasks as possible, and once you have understood that I cannot complete more than 3 tasks, so what will you check? You will check the priority. Do you agree with this? गाइस, आपको एक चीज पता है कि आप 3 टास्क से ज्यादा नहीं करने वाले हो, तो फिर आप क्या करोगे? अब आप प्रायोरिटी को भी तो ध्यान दोगे ना, क्योंकि वो तो है ही क्या, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ही इज जस्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ डेज, नो प्रायोरिटी टू बी कंसीडर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो ये कंडीशन नेगेट थोड़ी ना हो रही है। Try to understand that point. But yes, this is a valid point. T1 and T5 should be the correct answer, क्योंकि T1 and T5 दोनों हमेशा आएंगे। सर T3 में भी तो सेम टाइम लग रहा है। गौतम, तुम एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो, थोड़ा सा सोच लेना बाद में। अभी मैंने क्या बोला? T3 क्यों कंपलसरी नहीं है? आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। चलो, ऑप्शन ही है ही नहीं, यू डोंट नीड टू चेक ऑप्शन। Guys, in the previous question you have multiple possibilities, ठीक है। सो उसमें श्योरली कौन से टास्क आएंगे? T1 एंड T5 वो श्योरली आएंगे। जैसे इसमें भी देखो, द टास्क दैट अरुण शुड ट्राई टू कंप्लीट आर, कैन आई से दिस वन? क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसके मैक्सिमम टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं 3, एंड प्रायोरिटी इज ऑल्सो टेकन केयर। क्या ये सबको समझ में आया? Now, guys, how to check the priority? How to check the priority? So, do one thing. You know, the lower the priority, lower the value, higher the priority. मतलब 1 is highest priority, 2 is
देन द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको दिए है 3 टास्क के, उसकी प्रायोरिटी का टोटल करो। When you add the numeric values of priority, the lower the total, the higher will be the priority covered. क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर T1, T2 एंड T5 को आप देखोगे, ध्यान से सुनो ये पॉइंट को, T1, T2 एंड T5, तो प्रायोरिटी का टोटल क्या हुआ? 1 + 2 + 4, दैट इज 7। बट अगर मैं T1, T4 एंड T5 देखता हूं, T1, T4 एंड T5, तो उसमें मेरा समेशन कितना हो रहा है? 1 + 3 + 4 8, ठीक है। और T1, T4 ये तो हमने कर लिया, T1, T2, T4, T1, T2, T4, तो उसमें हमारा कितना हो रहा है? हाँ, T1, T2, T4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेज आपके ज्यादा हो रहे हैं, तो ये टास्क तो कंप्लीट ही नहीं हो सकते। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? सो वो तो आएगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई आप ऑप्शन डी के साथ में लोगे, बिकॉज उसमें आपके 3 टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं एंड प्रायोरिटी इज ऑल्सो टेकन केयर। T1, T3, T5, हाँ चलो T1, T3, T5 करो। सो T1, T3, T5, व्हाट इज द प्रायोरिटी टोटल? 1 + 5 6 + 4 10, 10 प्रायोरिटी हो रही है ना, तो आप तो लोअर प्रायोरिटी रखोगे ना। न्यूमेरिकल टोटल जितना लोअर आएगा उतना बेटर है। तो फिर काफी सारे आंसर हो जाएंगे ना विरल। इफ प्रायोरिटी इज नॉट कंसीडर्ड तो काफी सारे आंसर हो जाएगा। नहीं, एज सुन एज पॉसिबल मतलब उसके 10 टास्क है, ठीक है, उसके पास 10 दिन है, सॉरी, राइट। हाँ, सो यहां पे लिखा है ही कैन स्टे फॉर मैक्सिमम 10 days, ईच ऑफ द टास्क हैज अ प्रायोरिटी एंड टेक सर्टेन नंबर ऑफ डेज। हिज लास्ट प्रायोरिटी इज टू गो बैक एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, लास्ट प्रायोरिटी, बट उससे पहले आपको ये प्रायोरिटी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। उससे पहले आपको ये प्रायोरिटी का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो प्रायोरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जितना लो हो सके वो रखना है। फिर उसके बाद आएगा गो बैक टू द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट कंसीडर दैट, ठीक है। ओके, so yeah, just to guys quickly tell you about the plus and iconic subscription. This is what you get in plus subscription, and these are the additional benefits of iconic subscription for your reference. Okay, this is turning into subjective set. Shantanu, I think there was clarity because the guidelines were clearly given कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डेज देखना है, मतलब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क देखना है, फिर आपको प्रायोरिटी देखना है, और फिर लास्ट में आपका आएगा कि आप जल्दी से जल्दी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। सपोज देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 टास्क्स, 1, 2 and 3. Okay, so in the first combination the priority total was say 7, in the second one it is 8, in the third one it is 10। हर एक में आपके 3 टास्क तो है ही, and days required in the first one is say 8, in the second one is 9, the third one is 10, sorry, in the third one it is say 7। okay, यहां पे 9 ले लेते हैं, तो ऐसे कुछ ले लो। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले क्या देखोगे? प्रायोरिटी आपकी, पहले तो नंबर ऑफ टास्क, तो नंबर ऑफ टास्क हर एक में 3 है। सो नाउ यू विल कम टू प्रायोरिटी टेबल एंड आप देखोगे कि जिसमें प्रायोरिटी हाई हो रही है वो पहले होना चाहिए। अब आप ये नहीं देखोगे कि मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊं, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दो के लिए प्रायोरिटी सेम है तो फिर मैं देखूंगा कि डेज किस में कम हो रहे हैं, आई नीड टू फोकस ऑन दैट फर्स्ट। अभी क्लियर गाइस? यस, ओके, चलो। So here are the plus subscription pricing guys for your reference, and you can definitely apply code SHAH10 when you go for plus or iconic subscription. Don't forget to use it, and these are the iconic plans at the reduced price, 12 months and 24 months plan. There is also 6 months plan. ठीक है, आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप प्लीज पिंग करना ronak_live पे, मुझसे बात करो पहले, then go for that। आंख बंद करके मत चले जाओ, right? Yeah, let's take another set, 2015 set। ठीक है, हाय जिग्नेश, गुड इवनिंग। क्या हो गया भाई, इतना लेट क्यों हो गए?
वाह रे वाह. So please analyze the data and then I'll create the poll. One hint, guys, for such question: whenever there are multiple parameters and if it is you are finding it too confusing, you can just arrange them based on first parameter and then you can go to second parameter. For example, here there is height and there is qualification, so try to arrange them first based on height, and then once you have done it, once again visit all the points and try to figure out their qualification. ठीक है? Or you can create two separate arrangements in terms of further qualifications. एक सेकेंड ना. Kalpana is more qualified than Kamlesh, who is more qualified than Kriti. Yeah. नहीं, सो क्या फाइन कैसे है? आई थिंक ये ये कमला है, ये कल्पना है ना? मतलब आपका कंफ्यूजन क्या है? अच्छा, आप नाम की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कल्पना एंड कमला सेम ही लग रहा है. ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ गया. ओके, हाँ चलो पोल करते. अभी मुझे पोल भी ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना? कमला और कमलेश में कंफ्यूज ना हो जाए, क्रांति एंड कृति. अरे मैं टाइम देता हूं ना, पोल में भी टाइम देता हूं ना, प्रॉब्लम क्या है? आई गिव यू टाइम. आप ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों को अलग अलग रख सकते हो. दो अरेंजमेंट बना दो, हाइट के हिसाब से एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से.
आप चाहो तो अपने लिए थोड़े से ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो, बट ये भी इक्वली कंफ्यूजिंग है, इसमें भी गलती होने के चांस है, तो बेटर है कि आप पूरा ही लिखो, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स टेक 3 more questions so that you can understand whether you have solved it correctly or not, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कम समय देता हूं, क्योंकि या तो आपका अरेंजमेंट बना है या तो आपने नहीं बनाया होगा, तो ट्राई करो एक बार फिर से करेक्ट करने की, अगर कोई गलती है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो। चलो, लेट्स लुक एट दैट। Yeah, so here is the leaderboard. Ritam, okay, Pavan, Krishlay, Mihir, Bhavna, Pratik. Acha, all of them have got 5 out of 5 correct. That's awesome. Good guys. Let's see. चलो इसमें क्या आता है फिर आपका। नहीं कृष्ण बराबर है, थर्ड आएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? आई अग्निमित्र, राइट। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ कमला इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट? गाइस क्या रैंक आएगा उसका, कमला का, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट? यस, इट शुड बी 5 लास्ट, मतलब द टॉलेस्ट, करेक्ट। चलो अभी अगर इसको अरेंज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट का ये सही हुआ है, बाकी 50% का सही नहीं हुआ है, तो क्यों ऐसा हुआ? इनफैक्ट लेस देन 50% वाज द एक्यूरेसी, राइट। तो गाइज यहाँ पे मैं पहले हाइट के हिसाब से देखता हूं, सो कमला इज टॉलेस्ट वाइल कृपा इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड। सॉरी, कमला इज नॉट टॉलेस्ट, ठीक है। राइट, लेट्स लुक एट दिस वन, कमला इज लेस क्वालिफाइड। लेट्स लुक एट दिस वन, ये भी नहीं। कल्पना इज शॉर्टर देन कृति। अब कल्पना के लिए मैंने केपी लिया है, सो केपी शॉर्टर देन कृति बट टॉलर देन क्रांति, ठीक है। सो शॉर्टर देन कृति, कृति को मैंने के टी कहा है एंड क्रांति को मैंने के आर ए कहा है। अब बीच में कुछ और लोग भी हो सकते हैं, तो हमेशा जब आप ऐसे करो ना, तो आप जगह रखो थोड़ी सी बीच में लोगों को घुसाने की। सर 2 months अगो ये क्वेश्चन देख के ही मैं डर गया जाता था, बट नाउ गेटिंग ऑल राइट। ओके अंश, दैट्स रियली ग्रेट। सी वही है कि आप एक ही चीज बार बार करोगे ना, तो यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, योर माइंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। ओके फाइन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये वाला पॉइंट है, मुझे सीधा सीधा 3 लोगों का इससे अरेंजमेंट मिल रहा है ना।
तो ये मैंने ले लिया। अब कृति इज मोर क्वालिफाइड देन कमला वाइल कमलेश इज टॉलर देन क्रांति। कमलेश इज टॉलर देन क्रांति, तो हमें ये पता है। कृपा इज लीस्ट क्वालिफाइड, ओके। कमला इज नॉट द टॉलेस्ट वाइल कृपा इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड, ओके। कमला इज नॉट टॉलेस्ट। अब मुझे एक चीज पता है कि कमला टॉलेस्ट तो नहीं है, तो कहीं पे कमलेश, कमला इज टॉलर देन कमलेश, कमला इज टॉलर देन कमलेश, ठीक है, ये हमें पता है। सो कमला के लिए हमने केएम लिया है। क्या हम ऐसे रख सकते हैं, कमला एंड कमलेश, ऐसे रख सकते हैं? हाँ, कमला इज टॉलर देन कमलेश, ओके। तो कौन सा पॉइंट वायलेट हो रहा है इसमें? कल्पना इज शॉर्टर देन कृति, बट ये तो हो गया। कृति इज मोर क्वालिफाइड बाय कमलेश इज टॉलर देन क्रांति। हाँ, कमलेश इज टॉलर देन क्रांति। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, ये क्रांति को नीचे ले आता हूं। यू नो, लेट्स डू वन थिंग, क्रांति कमलेश, सॉरी कमला एंड कमलेश, ऐसे कर लेते, ठीक है। कमला कमलेश एंड क्रांति, ऐसे कर लिया तो अच्छा, ओके। अच्छा, फाइन। सो कमला इज जस्ट अ मोमेंट Kripa is least qualified among the daughters and Kriti is taller than Kriti is more qualified than Kamla, while Kamlesh is taller than Kriti. Oh, Kamlesh is even taller than Kriti, right? So Kriti से ऊपर कमलेश आएगा, है ना? So यहाँ पे ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। So कमला एंड कमलेश ऐसा हो गया, right? हाँ, right? कमलेश इज टॉलर देन कृति, टॉलेस्ट है क्या? हाँ, बट कमला तो टॉलेस्ट हो नहीं सकती, यस। कमला इज नॉट टॉलेस्ट। गाइज आप लोग है ना, मतलब अभी मेरे लिए भी ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। चलो ठीक है, मैं यहां पे डाल देता हूं। हाँ, कृपा शुड बी द टॉलेस्ट, ओके। सो गाइज एक्चुअल ऑर्डर आपका आएगा कृपा कमलेश, सॉरी कमला कमलेश, कृपा कमला कमलेश, देन इसके बाद कौन आ रहा है, कृति कल्पना एंड क्रांति। कृति कल्पना एंड क्रांति। यू अग्री विद दिस? यस, ये आपका करेक्ट ऑर्डर आएगा। मैं मतलब अगर एक एक पॉइंट लेने गया ना, क्योंकि देखो इसमें कैसा होता है कि आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिमिलरली इवन आई मेक मिस्टेक्स इन रीडिंग, राइट? हाँ, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व करो, ठीक है। सिमिलरली गाइज अभी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है, क्रांति देन कल्पना। सो क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले आएगा क्रांति, फिर कल्पना, देन कृति, देन कमलेश, राइट? यस, एंड फिर कमलेश के बाद में कौन आएगा? नो, क्रांति कल्पना कमलेश एंड देन कृति आएगा ना। क्रांति कल्पना कमलेश एंड देन कृति आएगा दोस्तों, पहले कमलेश आएगा फिर कृति आएगी। करेक्ट, ये सही है, ये सही है। ओके, फिर इसके बाद कौन आएगा? जस्ट अ मोमेंट गाइस, कृति, फिर कमला एंड देन कृपा, फिर आएगी कमला एंड देन आएगा कृपा। ये करेक्ट है?
Right. Just imagine, guys, what happens when you tackle such question under pressure. जब आप ये क्वेश्चन को अंडर प्रेशर टैकल करोगे तो क्या होगा, मतलब डेफिनेटली यू विल गो मैड, कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है, इसीलिए ऐसे रखते हैं। ये क्वेश्चन इजी है बट इन्होंने नाम के साथ में खिला हुआ है। So make a point to practice such question because in few exams they'll give you such question just to confuse you. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ABCDEF कर देता ना, ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाता, बट हमारे पास वो चॉइस नहीं है कि आप हर एक को लिख के एक 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 करने जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। बेचारी माँ ने क्यों एस्ट्रोलॉजी तरीका फॉलो किया, निधि परेशान हो गई। वो माँ भी कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, अरे निधि तुम तो भावुक हो गई। चलो गाइस, सो दिस वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट वैरायटी। नाउ यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, कमलेश देन क्रांति, हाँ इसमें आएगा कमलेश, फिर इसमें आएगा क्रांति, फिर इसमें आएगा 3 और इसमें 5। अभी क्लियर? अच्छा चलो, अभी एक नया अलग ही वैरायटी का केस लेते हैं दोस्तों। सब लोगों ने गवर्नमेंट कचेरी तो विजिट करी होगी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड डिफरेंट ऑफिसेस सम टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम। यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिस है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो वहां पे उनका ऑपरेशन आवर्स रहते हैं, उनके ऑपरेटिंग आवर्स रहते हैं, आवर्स ऑफ ऑपरेशन जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर केसलेट है। शेड्यूलिंग नहीं है ये, इट इज नॉट शेड्यूलिंग, इट इज नॉट अरेंजमेंट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट पजल। ठीक है, सो लेट्स सी। बिफोर दैट जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, कीप अटेंडिंग दिस सेशन। कल 12 बजे का सेशन मिस मत करना, फिर कल 4 बजे का नहीं रहेगा क्योंकि कल बुधवार है, फिर गुरुवार को रहेगा आपका 4 बजे वाला। लेकिन अपना लक्ष्य बैच कल रहेगा। कल से लक्ष्य बैच में मैं लॉगरिदम शुरू करने वाला हूं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक से करने वाले हैं हम। ठीक है, right, and please enroll in my plus batch if you are still getting confused about your preparation. If you need guidance and all, go for plus guys. Do not forget to apply code SHAR10। सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनका टाइम है पर उनका मन नहीं है? सर कुछ ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम है मन नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको तो काम करना ही करना है। ठीक है। Right, and even for BBA entrances we have batches, so keep learning guys. And here are the pricing plan for plus subscription. Similarly there are iconic subscription for your reference. चलो guys, ये लगता बहुत बड़ा केसलेट है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, और इसको मैंने 4 लाइन में मतलब ऐसे 5-6 पॉइंट में समराइज भी कर दिया है, बट पहले आप ये पूरा पढ़ लो। Spend 2 minutes, just 2 minutes, go through the data। कोई भी अननेसेसरी गांव के नाम है, तरंगाबाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो ये सब आपको दिमाग में नहीं लाना है कि ये तरंगाबाद कहां पे है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, मेरा जीके कितना पुअर है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ केसलेट को पढ़ना है। काफी लोग सेंटी हो जाते हैं। आप सबको पता होगा टारगेट कैट 21 करके फ्री टेस्ट भी हुआ है। कर लिया सबने? चलो
हाँ तो नहीं, इंफॉर्मेशन तो यहां पे भी दे रखी है। Let me create the poll, guys. Let me create the poll first. ठीक है, या और फिर आप उधर सोच सकते हो, पोल के अंदर आप सोचो। Guys, for one of the option I am not sure, so we'll validate that. ठीक है, थोड़ा सोच के करना, थोड़ा सा सोच के करना. We'll discuss every question. We'll discuss. Right. Should be Wednesday, right? Chalo, shall we understand this question, guys? Everyone, shall we discuss this question? So, on which of the following days maximum number of windows is simultaneously open at 9:45 a.m.? Definitely, we'll go by answer option. Monday को देखते हैं 9:45. तो guys, can I say W1 will be open? क्योंकि W1 9:30 to 2:30 PM मंडे है ना? फिर W2 भी ओपन होगा, W3 नहीं ओपन होगा. हाँ, अरे गाइस छोड़ो ना, एक सेकेंड, वो डिस्कशन छोड़ो ना, किसने क्या किया. गाइस, व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट दैट? किसी को एक सेकंड में देना है तो देने दो, किसी को आप अपना देखो, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा. ठीक है, हाँ, W4 भी नहीं है एंड W5 भी नहीं है. अरे एक सेकेंड, W4 है ना? W4 देखो, मंडे को क्या है, बिटवीन 8 एंड 10 मंडे, तो W4 तो है दोस्तों, W5 नहीं है. अभी क्लियर? राइट. W2 क्यों नहीं है? अच्छा, W2 का मंडे ये टाइम है. ओ सो गाइस, सिर्फ दो विंडो ओपन है, तो सिर्फ दो विंडो ओपन है. वेडनेसडे को देखते हैं. नहीं मनु, आई सजेस्ट कि ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्विक ऑब्जर्वेशन करो, क्विक ऑब्जर्वेशन करो, हो जाएगा. लेट्स सी, लेट्स डू इट फॉर वेडनेसडे.
थोड़ा एक्यूरेटली करोगे डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, इसमें टाइम वेस्ट मत करो टेबल बनाने के लिए। सो वेनसडे को अगर हम देखते हैं तो ये वेनसडे है, आप सीधा ऐसे चेक कर सकते हो, तो यस ओपन, फिर यहां पे वेनसडे 8:30 ओपन, फिर यहां पे 10 से वेनसडे को ओपन है नहीं, राइट। हाँ, W1, W5 एंड W2, डू यू अग्री विद दिस। फिर W4 भी अगर आप देखोगे तो वेनसडे कहां पे है, वेनसडे नहीं है, एंड W5 अगर हम देखेंगे तो वेनसडे है। सो 3 हो गए ना, मतलब व्हाई डू यू नीड टू मेक अ टेबल, आप सीधा ऐसे कर सकते हो। अभी क्लियर। हाँ, W2 मंडे को ओपन नहीं था, नहीं नहीं वो हटा दिया हमने, वेनसडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली इफ यू चेक फॉर अदर्स यू विल रियलाइज वेनसडे इज द हाईएस्ट, ठीक है। श्योर गाइस, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी क्रिएट अ पोल वंस अगेन। नहीं ना निधि। अरे उसको टाइम लगेगा, इट विल टेक सम इयर्स, ऐसे थोड़ी ना ये लोग मान जाएंगे। बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू रेज दैट थिंग इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से उसको रेज करते हैं कि इट कैन रीच टू देयर, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो बनाने से नहीं चलेगा। और वैसे भी जब मैंने वो लिया था तो काफी कम स्टूडेंट्स ने उसको लाइक किया था, मतलब काफी स्टूडेंट्स ने तो पहले से ही मान लिया कि ये ऐसे ही कुछ होने वाला है नहीं, ये सर ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे, आज तक किसी ने भी ऐसा मूवमेंट नहीं किया है। तो भाई रजिस्ट्रेशन फीस तुम 10,000 दे दोगे, दूसरे लोग थोड़ी ना दे पाएंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दैट इज डेफिनेटली विदाउट चार्जिंग मच फीस, यू नो, रीयूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ऑनलाइन किया तब क्या उन लोगों ने आपसे 5,000 कंप्यूटर का भी पैसा लेना शुरू कर दिया क्या, 10,000 रुपए लेना शुरू कर दिया क्या मॉनिटर आपका, ऐसा थोड़ी ना किया है। राइट, so on which day of the following days not more than one window is open simultaneously at any given point of time। सो गाइस सैटरडे को ये चीज हो रही है कि सैटरडे को कोई भी एक साथ में ओपन नहीं है। देखो एक चीज बताता हूं, मंडे को तो हमने देख लिया था 9:45 को 2-3 विंडो ओपन थे, वेडनेसडे को भी थे, फ्राइडे हमने चेक नहीं किया था बट फ्राइडे को भी कुछ विंडो तो ओपन है ही। तो हमें मंडे वेडनेसडे तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। मंडे वेडनेसडे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और फ्राइडे भी हमने चेक किया था, हमें पता था कुछ विंडो तो ओपन है। फ्राइडे कितने विंडो ओपन थे एक साथ में दोस्तों, 9:45 को ओपन थे ना कुछ विंडो, 2 विंडो ओपन थे क्या, यस। ओके एक बार चेक कर लो जल्दी से, फ्राइडे ये नहीं था, फिर जस्ट अ मोमेंट ये भी नहीं था, फ्राइडे ये भी नहीं था, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ओपन थे क्या, हाँ फर्स्ट ओपन है फ्राइडे को। हाँ नहीं, एक ही ओपन था दोस्तों, फ्राइडे को एक ही ओपन था, 5 थोड़ी ना ओपन है, 5 नहीं है भाई, 5 कहां पे कह रहे हो,
हाँ नहीं नहीं, मैं 9:45 को कह रहा था, 9:45 को। चलो सो गाइज यहां पे अगर हम देखेंगे तो थर्सडे एक ऐसा, सॉरी राइट, सैटरडे एक ऐसा दिन है। हाँ रोमन, अभी तुम ये क्या कह रहे हो? अरे ऐसे बात नहीं करते भाई, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। औकात वगैरह मत वर्ड यूज करो गाइस। वी ऑल आर जीनियस एंड वी ऑल आर ग्रेट जस्ट बाय मनी। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरी ये नहीं है वो नहीं है। तो प्लीज डू नॉट यूज दिस वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। बट यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्लस एंड आई गाइड टू ऑल माय प्लस स्टूडेंट्स, राइट? ये मैंने बताया हुआ है। आप मुझे बात करो टेलीग्राम पे। हाँ मत लो ना, मैंने कब कहा? मैं किसी को कहता भी नहीं कि आप ये लो वो लो, राइट? गाइस फ्राइडे आल्सो नो विंडो इज ओपन साइमल्टेनियसली। नहीं, एक सेकेंड। फ्राइडे को गाइस, फ्राइडे को कौन से टाइम पे दो विंडो ओपन है बताओगे? मंडे एंड वेडनेसडे तो हो ही नहीं सकता, हमने देखा 9:45 को ही दो ओपन थे। 3 to 5 देखो, ठीक है? 3:30 to 5 कौन से दो विंडो ओपन है गाइस? 3 and 5। विंडो 3 एंड विंडो 5 को देखो एक बार फ्राइडे के लिए। सो फ्राइडे को यस 10 to 12 है, राइट? एंड यहां पे फ्राइडे को कौन सा है? विंडो 1 and 5। ओके चलो गाइस, विंडो 1 and 5। सो विंडो 1 फ्राइडे को कब ओपन है? इट्स 3 to 5। एंड विंडो 5 कब ओपन है फ्राइडे को? फ्राइडे यस 3:30 to 5:30। सो कहने से 3:30 to 5 दोनों ओपन है, तो फ्राइडे तो आ ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा? सैटरडे। सो चेक फॉर सैटरडे, नॉट मोर देन वन विंडो इज ओपन। अभी क्लियर गाइस? आंसर क्या आएगा? सैटरडे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक से ज्यादा विंडो ओपन नहीं है। देयर इज नो कॉमन ओवरलैपिंग टाइम, राइट? चलो नाउ ट्राई फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वन। सी जिसको भी प्लस या आइकनिक लेना है दोस्तों, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिन कर सकते हो, ronak_live पे। इस पे पिन करो एंड समझो कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। हाँ सो मैं आपको बताता हूं। आस्था इज सेइंग आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन। All windows of the transport permit office are closed for 1 hour during the office hours on which of the following day? गाइस कौन सा ऐसा दिन है जब सारे विंडो 1 घंटे के लिए बंद रह सकते हैं? सो ऑफ कोर्स इट विल बी वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे। क्यों गाइस वेडनेसडे? अब यहां पे देखो मैं लिख देता हूं W1 बंद हो गए, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ओके हाँ, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स क्या है? 8 to 5:30, ठीक है, राइट? सो देखो W1 से W5 सारे 2:30 to 3:30 बंद है ऑन वेडनेसडे। चेक करो। हाँ तो कैन आई से वेडनेसडे हमें, ये तो हमारा 2:30 तक ही है। फिर यहां पे भी देखो तो ये तो मॉर्निंग नहीं है। फिर इसका भी अगर वेडनेसडे देखते हैं तो ये 12:30 तक ही है। फिर इसको अगर हमने देखा वेडनेसडे 3:30 के बाद है, और यहाँ पे वेडनेसडे देखते हैं 8 to 10 ही है। सो ये टाइम ऐसा है जब सारे विंडो बंद है। ऑफ कोर्स इट इज प्योरली ऑब्जर्वेशन। या गाइस ऑब्जर्वेशन है ना, तो वो भी तो एक इंपॉर्टेंट स्किल है मैनेजर्स के लिए। यस ओके फाइन। नाउ गाइस देयर इज वन मोर सेट। वी हैव 5 minutes, तो 5 minutes में हम एक और सेट कर लेते हैं आज।
उससे पहले जल्दी से बता देता हूँ 2022 के लिए भी बैचेस है एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकनिक इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड इट गाइस। सो मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स 50-60,000 स्पेंड करते हैं कोचिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको ये बेस्ट फीचर मिलेगा कि यू कैन इंटरेक्ट विद द मेंटर्स हु आर फ्रॉम IIM एंड ऑल, एंड these are some new variants, so you can go for that. Chalo, let's try for this question. Yeah. सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा पढ़ो और सॉल्व करो। Do you all agree with these values what I mentioned over here guys? क्या आप इससे अग्री करते हो? 80,000 यहाँ पे है, Figo 9%, so 9% of 80,000, 7,200. Sale has increased by 25%, so 1 lakh. ठीक है? हाँ, एक सेकेंड, तो 48, हाँ 5,000 के ऊपर आना चाहिए राइट, ये वैल्यू। कुछ गलती है क्या इसमें? हाँ नहीं, पर अप्रोक्सीमेटली ये क्यों बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि यहां पे हमारा ये वैल्यू आ रहा है 5,000 के अराउंड आना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पे 5,000 ही कर देते हैं, ठीक है? या गाइस, दिस इज क्लियरली एन एरर, राइट? इट शुड बी 5,000. Just a second, huh? Yes, correct. It should be 5,000, by the way. Let's look at next one. Similar question. Now this is a good one. Slightly time consuming.
गाइस यहां पे क्या पूछ रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। अल्टो 111 रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? व्हाई इज इट रॉन्ग? अरे कुछ भी हो सकता है ना, आप ऐड करो ना इनको। ये 360 डिग्री आपका टोटल होगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दिए हुए हैं ना आपको, यू आर गिवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहां पे ये मत सोचो कि डेसिमल में क्यों आ रहा है। ओके, सो गाइज बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका 80,000 है, ये आपका 1 लाख हो गया। हमने देखा था ये 7,000 के आसपास था, उसका ये 12,000 हो गया। सो कहने से दिस ग्रोथ इज मोर देन 50%, जबकि कार का ग्रोथ कितना हुआ है? 25% हुआ है। कहने से ऑल द कार्स हैव ग्रोन बाय 25%। तो अभी ये देखना है कि किसका ग्रोथ 25% से ज्यादा है, तो कहने से ये 25% से ज्यादा है। फिर यहां पे अल्टो का 32% है एंड ये 111 है। दोस्तों अब सुनो ध्यान से, 111 इसका कितना होगा, 360 का कितना होगा? कैन आई से दिस इज 1/3 while this will be how much? ये कितना आएगा? 111 डिग्री है, तो व्हाट विल बी दिस वन? 30% आ रहा है क्या आपका एग्जैक्टली? 111 अपॉन 360 इंटू, राइट, इंटू 360 इंटू 1 लाख, राइट। ओके, हाँ, सो ये अगर आप सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है? यू कैन से 30.83 है ना। सो 30,000 31,000 के आसपास आएगा, जबकि यहां पे कितना है? कहने से ये आपका था 1/3 ऑफ दिस 26,000 समथिंग, 27,000 जितना था। तो गाइस ये ग्रोथ जो है, इज इट मोर देन 25% ग्रोथ? नहीं, इतना नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 25%। देखो ये आप यहां पे 27,000 ले लो, 26.7, एंड ये 31,000 अगर मैंने ले लिया, तो 27,000 टू 31,000, दिस इज 4,000 ओवर दिस वन। नहीं, इतना कम तो नहीं आएगा शायद, कुछ तो हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ये वैल्यू एक बार कैलकुलेट करो गाइस, ये 32,000 के आसपास आना चाहिए शायद। प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू, कितना आ रहा है? 111 डिवाइड बाई 360, अच्छा 30.83 ही आ रहा है क्या? 2021, just a moment, let me see the value. 25.6 है, 32% of 80, 32% of 80, just a moment, हाँ। राइट, सो हमारा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 24,000 प्लस 1.6, 25.6 आएगा, करेक्ट। ठीक है, और यहां पे 31,000 हुआ, सो 25.6 पे ये कितना ग्रोथ हुआ है? 5.4,000 का ग्रोथ हुआ है अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो आई थिंक इट शुड बी मोर देन 25, इट शुड बी मोर देन 20%, but definitely less than 25%. Do you agree with this? अरे भाई यहां पे लिखा है ना इतना बड़े बड़े लेटर में, यश 2021 2022, करेक्ट। सो गाइस व्हाट आई एम सेइंग इज के फिगो के लिए हो रहा है, ऑल्टो के लिए नहीं हो रहा है। नाउ लुक एट स्विफ्ट गाइस, स्विफ्ट यहां पे कितना है? 67%, 67 डिग्री। अगर 70 डिग्री भी ले लो, सो इट इज लेस देन 1/5, ठीक है, इट इज लेस देन 1/5। तो परसेंटेज वाइज कितना आ रहा है? 18.6% आ रहा है, मतलब ये आपका 18.6 ऐसा कुछ आएगा, ऐसे कह रहे हो आप है ना, 18.6, जबकि यहां पे कितना था? 24, मतलब ये होगा 19.2। हाँ नहीं, कम एंगल है अमृत, वो बात सही है, लेकिन वैल्यू भी यहाँ पे ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, राइट। ये एंगल से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। आई थिंक अमृत हैज अ वैलिड पॉइंट कि ये एंगल को भी देखो। कैन आई से ये I10 में तो ये एंगल से ये एंगल ज्यादा है और ये वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है, सो दिस ग्रोथ विल बी मोर देन
25%। सिमिलरली ये एंगल से ये एंगल ज्यादा है डेफिनेटली, तो यहां पे भी ग्रोथ आपका मोर देन 25% होगा। ठीक है, यस। Can't we just count the cars whose share has increased? Yeah, exactly. Whose share has increased? Exactly, क्योंकि आपको इससे ही ज्यादा रखना है। So guys, हम लोग ये जो संदेश ने कहा और अमृत ने कहा है ना, I think that's a better way. Look at this angle and this angle. Can I say it's greater? Correct? Now this angle and this angle. अब इसको कंपेयर कैसे करोगे? इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जबकि यहां पे ये एंगल और ये एंगल कम हुआ है, तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। बट दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज बिगर। Similarly, this angle and this angle, this is bigger. But the problem is, what if the figures are not drawn to scale? What if figures are not drawn to scale? तो आप कैसे करोगे इसको? Just a second, guys. Yes, guys, have you understood? वो एक प्रॉब्लम है, वैल्यूज निकालना पड़ेगा, बिकॉज नॉट नेसेसरली कि इट इज ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल, इट मे बी जस्ट अ पाई एंड मतलब जो आपको ये 25% दिखाया है, तो एग्जैक्टली ऐसा 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। यस, तो हम लोग वही तो चेक कर रहे थे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज हमने ये देखा, परसेंटेज देखो, ये 9% है, अगर ये आपका मोर देन 9% है तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर। ये 32% है, अगर ये वैल्यू आपका लेस देन 32% है तो वो स्मॉलर आएगा। करेक्ट? अगर ये 24% है, ये वैल्यू 24% से कम आ रहा है, मतलब ये लेस आएगा, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली। गाइस, दैट पॉइंट इज करेक्ट। हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब ये वो जो 1000 का हम कर रहे थे, वो करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन जस्ट चेक कि भाई परसेंटेज कंपेयर करो। ठीक है, अभी क्लियर दोस्तों? अच्छा, इसका एक सेकंड, एक और तरीका है दोस्तों, एक और तरीका है। बिफोर वी वाइंड अप, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, उसकी जगह पे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना आसान नहीं रहेगा? मल्टीप्लाइंग दिस वन बाय 3.6, वोंट इट बी बेटर? डू यू एग्री विद दिस? 100% is 360 degree, so 1% is 3.6 डिग्री, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपका, है ना? और फिर आप सीधा कंपेयर कर सकते हो कि भाई अगर यहां पे बढ़ा हुआ है तो मतलब आपका ओवरऑल बढ़ा ही होगा, है ना? या सो देयर वर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन यूज। राइट, सो वो मत करना, एटलीस्ट जो हमने शुरू किया था वैसा मत करना, सीधा कंपेयर करो। राइट, हाँ। Okay, so that is what I mean. It's not necessary कि मैं हमेशा आपको बेस्ट अप्रोच ही बताऊंगा, ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना। माइंड ऑल्सो थिंक्स इन अ डिफरेंट वे। 6 महीने बाद जब यही सेट में करा रहूंगा तो शायद मेरे दिमाग में कुछ अलग अप्रोच आएगा, तो दैट हैपेंस। सो दैट इज वेयर यू कैन रेज योर पॉइंट एंड वी कैन एक्चुअली सी व्हिच इज द बेस्ट मेथड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, बट वो कमलेश कृति क्रांति वो खतरनाक था। ठीक है, उसके लिए क्या बेस्ट मेथड रहेगा सोचना। कल LRDI 4 बजे नहीं रहेगा, कल 12 बजे वाला सेशन रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड प्लीज कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।